جب پاک فضائیہ کو پہلے پہل امریکی طیارے دیے گئے تو ان کی پرواز کی تربیت کے لیے ہمارے چند ایک ہوابازوں کو امریکہ بھیجا گیا، لیکن امریکہ کے فضائی انسٹرکٹرز نے جب پاکستانی ہوابازوں کی ہنرمندی دیکھی تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہیں یہاں بلا کر تربیت دینے کی ضرورت نہیں، انہیں صرف طیارے دے دو۔ ہمارے ان زیر تربیت ہوابازوں نے راکٹ اور گن فائرنگ اور پرواز میں امریکی انسٹرکٹروں کے منہ پھیر دیے تھے۔ 1958 کے آخر میں پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے فضائی کرتب کا ایک ایسا کمال دکھایا تھا جسے دنیا کی کسی بھی ایئر فورس کے ہواباز دہرا نہیں سکے، نہ کسی نے اس سے پہلے ایسی جرت کی تھی۔ یہ کرتب تھا ڈائمنڈ فارمیشن لوپ، 16 جیٹ طیارے چوکور ہیرے کی شکل میں اڑا کر انہیں اسی شکل میں الٹا کر کے سیدھا کرنا۔ کمال یہ تھا کہ بجائے ایک طیارے کو الگ الگ الٹا کر کے سیدھا کرنے کے، پوری کی پوری فارمیشن اپنی ترتیب بدلے بغیر الٹی ہو کر آہستہ آہستہ سیدھی ہوئی اور آگے نکل گئی۔ کوئی ایک بھی طیارہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہوا۔ یہ مظاہرہ کراچی میں کیا گیا تھا۔ انگلستان کی طیارہ ساز فیکٹریوں کے دو مشہور جریدوں فلائٹ اور ایروپلین کے نامہ نگار جو خود مچے ہوئے ہواباز ہیں وہاں موجود تھے۔ یہ کرتب دیکھ کر ان کی آنکھیں اور منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انگلستان میں یہ کرتب دکھایا جا چکا ہے، لیکن 16 طیاروں سے نہیں، صرف 4 طیاروں سے۔ روسی اور امریکی نمائندوں نے بھی ایسے ہی بے ساختہ تاثرات کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے ہواباز اتنی جرت نہیں کر سکتے۔ ایسی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جو اس قابل فخر امر کی مظہر ہیں کہ پاک فضائیہ کے ہواباز روز اول ہی سے شہباز تھے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ پاک فضائیہ کے طیارے تمام ممالک کے فضائی بیڑوں کے مقابلے میں بہت کم کریش ہوتے ہیں۔ طیارے کسی نہ کسی خرابی یا ہواباز کی غلطی سے کریش ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن پاک فضائیہ کے سالانہ اعداد و شمار ہمیشہ بہت کم رہے ہیں۔ اس میں ہواباز کی چابک دستی کے علاوہ گراؤنڈ کرو کی مہارت کو خصوصی دخل ہے۔ بہت کم طیارے فضا میں انجن یا کسی اور خرابی کی وجہ سے گرے ہیں۔ پاک فضائیہ کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے یقین سا ہونے لگتا ہے کہ پاکستانی ہوابازوں کو نہایت موزوں حالات میں بہترین طیاروں پر جدید تربیتی ساز و سامان سے تجربہ کار ہوابازوں کے ہاتھوں تربیت ملی ہوگی، اور شاید پاک فضائیہ کو دوسری جنگ عظیم کا تجربہ بھی ہوگا، جنہیں پاکستان ایئر فورس بے مائیگی میں معرض وجود میں آئی اور اولین ہوابازوں نے بے مائیگی میں تربیت حاصل کی تھی۔ جب خدا ذوالجلال نے ہمیں پاکستان کی سرزمین عطا فرمائی تھی، ہم معدود چند ایئرمین تھے جو پاکستان ایئر فورس کے حصے میں آئے تھے۔ جب ہندو، سکھ اور عیسائی بھارت چلے گئے تو پشاور میں گنتی کے چند مسلمان ایئرمین رہ گئے تھے۔ تمام سینئر ہواباز اور ایئرمین اور زیادہ تر طیارے بھارت کے حصے میں آئے تھے، کیونکہ ایئر فورس میں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی اور ہواباز تو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ برطانوی ہند میں تعصب کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو ہواباز بننے کے مواقع سے اکثر محروم رکھا جاتا تھا۔ رائل انڈین ایئر فورس دراصل غیر مسلم ایئر فورس تھی۔ ہندو ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایئر فورس میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ایئر ہیڈ کوارٹر، گروپ ہیڈ کوارٹر، سلیکشن بورڈ اور بھرتی دفتر ہندوؤں کے قبضے میں تھے۔ ایئر فورس کے اندر یہ عالم تھا کہ ایئرمین میس اور اسٹیشن لائبریریوں میں کانگریس کے جھنڈے اور گاندھی کی تصویریں آویزہ کی جاتی تھیں۔ لائبریریوں میں مسلمانوں کے مطلب کی ایک بھی کتاب نہیں رکھی جاتی تھی۔ زیادہ تر کتابیں انگریزی کی یا کانگریسی پروپیگنڈے کی ہوتی تھیں۔ انگریز افسروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا تھا۔ تمام مذاہب کے ایئرمینوں کے لیے ایک ہی میس میں کھانا پکتا تھا جہاں بکرے حلال ہو کر آتے تھے، لیکن 1946 میں جب مسلم لیگ ایک حقیقت بن کر ہندو ذہنیت کے لیے محیب خطرہ بن گئی تو ہندو افسر اور دیگر عملے نے میسوں میں جھٹکے کا بندوبست کر دیا۔ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو ان میں کئی ایک کے کورٹ مارشل کر کے جیلوں میں بھجوا دیا گیا یا سروس سے نکال دیا گیا۔ کوہاٹ میں اسکواڈرن لیڈر آوان کے خلاف سازش کر کے کورٹ مارشل کر دیا گیا اور جھوٹی شہادتوں کے بلبوتے پر انہیں 2 سال قید دلا دی گئی۔ اور جب مسلم لیگ مرکز کی تمام مسلم نشستوں پر قابض ہو گئی اور ہر صوبے میں مسلم لیگ نے انتخابات جیت لیے تو رائل انڈین ایئر فورس میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ بعض فضائی اڈوں پر مسلمانوں کو اس قدر مشتبہ قرار دے دیا گیا کہ بیرکوں میں بھی ان پر نظر رکھی جانے لگی۔ 1946 کے آخر میں مسلمان ایئرمین اس حد تک پریشان ہو گئے کہ ہمارا ایک وفد دلی میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملا اور انہیں انڈین ایئر فورس میں مسلمان ہوابازوں اور گراؤنڈ کرو کی حالت زار سنائی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور ریلیز کا سلسلہ جاری تھا۔ مسلمان لڑکوں نے قائد اعظم سے کہا کہ ہم اس قدر تنگ آ گئے ہیں کہ بیشتر مسلمان ریلیز لے کر انڈین ایئر فورس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے کمال خود اعتمادی اور شفقت سے کہا کہ تمام مسلمان ہوابازوں اور دیگر سٹاف سے کہہ دو خواہ کچھ ہو جائے ایئر فورس سے نہ نکلیں۔
पाकिस्तान बहुत जल्द बनने वाला है। पाकिस्तान को मजबूत एयर फोर्स की जरूरत होगी। पाकिस्तान एयर फोर्स की बुनियाद तुम्हें ही रखनी है। हिंदू और अंग्रेज की सख्तियां बर्दाश्त करो, तुम बहुत जल्द आजाद होने वाले हो। बाखुदा हमें तवक्को न थी कि हम बहुत जल्द आजाद होने वाले हैं, लेकिन कायद आज़म की बातों और पुरएतमाद अंदाज ने हमें उसी रोज पाकिस्तान दिखा दिया। कायद आज़म का पैगाम ज़ाती खुतूत के जरिए हिंदुस्तान के गोशे गोशे में बिखरे हुए मुसलमानों और मुसलमान हवाबाजों तक पहुंचा दिया गया। हिंदू लीडरों को पाकिस्तान बनता नजर आ गया था। इसी खतरे के पेश नजर वो रॉयल इंडियन एयर फोर्स से, जो दरअसल अंग्रेज का फजाई बेड़ा था, मुसलमानों को निकालना चाहते थे ताकि पाकिस्तान बने तो उसकी एयर फोर्स के लिए बुनियादी स्टाफ ही न हो। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी पाकिस्तान बनने तक ही नहीं थी, उसके बाद भी बदतरीन और शर्मनाक मिसालें पाक फजाइया के इब्तदाई और कठिन तरीन बाब में हमेशा याद की जाती हैं। हमारे हिस्से में दक्यानूसी किस्म के चंद एक टेम्पेस्ट तैयारे आए। उनकी देखभाल के लिए जमीनी स्टाफ इस कदर कलील था जो इन चंद एक तैयारों के लिए भी नाकाफी था। हिंदू, सिख और भारतीय ईसाई पाकिस्तान बनते ही भारत जाने लगे। सिवाय पेशावर के पाकिस्तान के हिस्से में आए हुए तमाम फजाई अड्डे रिसालपुर, चकलाला, ड्रिग रोड और माड़ीपुर वीरान हो गए। वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग और इक्का दुक्का तैयारा बाकी रह गया या स्टोरों में सामान पड़ा था। गैर मुस्लिम एयरमैन स्टोरों से सामान निकाल कर साथ ले गए और तैयारों के स्पेयर पार्ट्स तक निकाल लिए गए। इन अड्डों पर अच्छे भले एक आध तैयारे के अलावा बाज ऐसे बेकार तैयारे भी पड़े थे जिनके इंजन या दीगर हिस्से काम आ सकते थे, लेकिन गैर मुस्लिम एयरमैन उनके इंजनों में बरकी ड्रिलों से सुराख करके बेकार कर गए और बाज जगह उन्होंने आग तक लगा दी। चकलाला में बम्बार तैयारों के नए इंजन पड़े थे जो बरतानवी फजाइया छोड़ गई थी। जाहिर है कि ये पाकिस्तान के थे, लेकिन हिंदू अफसरों ने जाते जाते ये इंजन कबाड़ियों के हाथ बेच डाले या बास को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के वायरलेस सिस्टम को भी वो बिल्कुल नाकारा कर गए। इन कीमती जगहों और सामान की चौकीदारी कौन करता? हम चंद एक मुसलमान पेशावर में थे और मुसलमान हवाबाज जिन्हें पाकिस्तान आना था वो अभी भारत के हवाई अड्डों पर बिखरे हुए थे। हिंदुस्तान में मुसलमानों का खून बहाया जा रहा था और हमें किसी भी मुसलमान हवाबाज के जिंदा आ जाने की तवक्को कम थी। पाकिस्तान बन चुका था। पेशावर के फजाई अड्डे पर पाकिस्तान एयर फोर्स का झंडा लहराया करता था, जिसे हम रुक रुक कर और टिकटिकी बांध कर अकीदत भरी नजरों से देखा करते थे। इस झंडे की खातिर मुसलमानों ने एक सदी की जंग लड़ी थी। इस झंडे को देखकर हम उन मुसलमान हवाबाजों का इंतजार और ज्यादा बेताबी से किया करते थे जो जाने किस हाल में अभी भारत में फंसे हुए थे। इनमें बेशतर भारत, खुसूसन मशरकी पंजाब के रहने वाले थे, जिनके रिश्तेदार हिंदुओं और सिखों की मुसलमान दुश्मनी और बर्बरियत की नजर हो चुके थे या हो रहे थे। मुसलमान हवाबाजों और एयरमैन किसी न किसी तौर पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन उन्हें अपने अजीजों के मुतालिक कुछ इल्म न था कि वो किस हाल में हैं, कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। एक तरफ उन पर पाक फजाइया की बुनियादें रखने का मुकद्दस बार था, दूसरी तरफ अपने अजीजों का गम खाया जा रहा था। पाक फजाइया ने उन लोगों की दस्तगीरी की और उन सबको लाहौर में जमा करके जितने ट्रक मिले उनके हवाले कर दिए और उन्हें राइफलें और स्टेन गन देकर थोड़े थोड़े आदमियों को भारत से अपने अजीजों को लाने के लिए भेजा। बाज अपने कुंभों को ले आए और बाज रोते चिल्लाते खाली हाथ लौट आए। कुंभे तो दूर की बात है, उन्हें अपने जले हुए मकानों में अपने अजीजों की लाशें भी न मिली। ऐसे बदनसीबों की ज़हनी हालत का अंदाजा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करके तवज्जो पाक फजाइया की तरफ कर दी और उन हालात में वो पाक फजाइया की बुनियादें रखने लगे। लेकिन बुनियाद रखी किस जमीन पे जाती? अपने पास न कोई फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल था, न कोई टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, न कोई तरबियती तैयारा, न कोई इंस्ट्रक्टर। बड़े सगीर में परवाज के दो तरबियती मरकज थे, इब्तदाई परवाज के लिए जोधपुर और आला परवाज के लिए अम्बाला। ये दोनों भारत में थे। इन दोनों मरकजों में ट्रेनिंग के लिए तमाम तर जदीद लवाजमात और इंस्ट्रक्टर मौजूद थे। भारत को तो दरअसल बनी बनाई एयरफोर्स मिल गई थी। तरबियती मरकज से लेकर मुनज़्ज़म लड़ाका स्क्वाड्रनों तक उसकी एयरफोर्स मुकम्मल थी। वहाँ तो रोजमर्रा के मामूलात में जर्रा बराबर फर्क न आया था। चुनांचे यूं ही कश्मीर में हुर्रियत पसंदों ने मुसल्लह बगावत की और कबायली पठानों ने डोगरों पर यलगार कर दी तो इंडियन एयरफोर्स फौरन हरकत में आ गई। पाकिस्तान की फजाई ताकत न होने के बराबर थी। 15-20 तैयारे कोई ताकत तो नहीं होती। जो साजो सामान पाकिस्तान के हिस्से में आया था और अभी तक भारत में पड़ा था, वो भारत सरकार ने रोक लिया। ये सब कुछ सरदार पटेल के उस बयान के मुताबिक हो रहा था जिसमें उसने कहा था कि हम पाकिस्तान को पांव पर खड़ा होने के काबिल बनने ही नहीं देंगे और अस्करी लिहाज से हम उसे इस कदर निहत्ता रखेंगे कि भारत का एक वार भी न सह सके। एक रोज हमें पेशावर में खुशखबरी मिली कि भारत से हमारे हिस्से का बहुत सारा एमुनिशन आ रहा है। छोटे एमुनिशन के अलावा हमारे हिस्से में रॉकेट और तैयारों की मशीन गन्नों का एमुनिशन भी आया है। जब एमुनिशन हमारे पास पहुंचा तो कई बक्सों और पेटियों में से पत्थर निकले।
फिर एक रोज खुशखबरी मिली कि पाक फजाइया के हिस्से में 8 टाइगर मॉथ तैयारे आए हैं जो जोधपुर के हवाई अड्डे पर पड़े हैं। इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर ने इत्तला दी कि अपने तैयारे जोधपुर से ले जाओ। टाइगर मॉथ 2 परों वाला वो तैयारा है जो पहली जंग अजीम से जरा पहले इजाद हुआ था। उसकी परवाज हवा और मौसम के रहमो करम पर होती है। मुखालिफ समत से हवा का तेज झोंका आ जाए तो टाइगर मॉथ हवा में मुअल्लक रह जाता है और डगमगाने लगता है। तकसीम हिंद से पहले ये कदीम तैयारे इब्तदाई तरबियत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इब्तदाई तरबियत का मरकज जोधपुर में था, चुनाचे ये तैयारे भी वहीं थे। इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि अपने टाइगर जोधपुर से ले जाओ, दरअसल मतलब ये रखता था कि उन्हें जोधपुर पर ही पड़ा रहने दो, इतनी दूर उड़ा कर कैसे ले जा सकोगे। टाइगर मॉथ की इंतहाई रफ्तार मवाफिक और पुरसुकून मौसम में 100 मील फी घंटा से ज्यादा नहीं होती, और अगर मौसम के तेवर बदल जाएं तो उसे उतार लेने के सिवा कोई चारा नहीं होता। उसकी एक उड़ान बमुश्किल 100 मील तक होती है। इन 8 टाइगर मॉथ जो जोधपुर से हजारों मील दूर रिसालपुर लाने थे, पाक फजाइया के पास अभी इतने हवाबाज नहीं पहुंचे थे जो उन्हें जाके उड़ा लाते। मुसलमान हवाबाज अभी भारत में बिखरे हुए थे। इंडियन एयरफोर्स ने पाक फजाइया के साथ अमली मजाक किया था। पाक फजाइया को तरबियत देने के लिए इन तैयारों की जरूरत थी। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ये तैयारे भारत को बख्श दिए जाते। आखिर पाक फजाइया ने इंतहाई खतरनाक फैसला किया, जिसके तहत पाक फजाइया का एक टिकोटा तैयारा फ्लाइंग ऑफिसर के ओहदे के 2 हवाबाजों और जमीनी अमले के 2 आदमियों को लेकर जोधपुर पहुंच गया। वहां चंद एक मुसलमान कैडेट जिन्हें पाकिस्तान आना था, उनकी तरबियती परवाज मजमूई तौर पर अभी चंद घंटे भी नहीं हुई थी। उन्होंने अभी बमुश्किल कंट्रोल थामना सीखा था। क्रॉस कंट्री उड़ाने तो अभी बहुत बात की बात थी। उनकी हालत उन बच्चों की सी थी जिन्होंने अभी खड़े होना सीखा हो, लेकिन उनसे दौड़ने की तवक्को रखी जाए, कोई और सूरत नहीं थी। उन्हीं शाहीन बच्चों को टाइगर मॉथ की हजारों मील की मुसलसल परवाज का इंतहाई नाजुक और पुरखतर फर्ज सौंपा गया था। 2 तैयारों को 2 फ्लाइंग ऑफिसर ने संभाल लिया और बाकी 6 में एक एक कैडेट बैठ गया। टिकोटा में पेट्रोल के चंद कनस्तर रख लिए गए। भारत वालों का फर्ज था कि इन तैयारों को जगह जगह पेट्रोल मुहैया करते, लेकिन उन्होंने अदावत की ऐसी मकरूह फजा पैदा कर रखी थी कि जब हमारे हवाबाज टिकोटा लेकर जोधपुर पहुंचे तो हिंदू उन्हें न सिर्फ घूर घूर कर देखते थे, बल्कि उन्हें एक घूंट पानी पिलाने से भी गुरेज करते थे। इन हालात में एक टिकोटे और 8 टाइगर मॉथ का फजाई काफिला जोधपुर से रवाना हो गया। टिकोटा की रफ्तार टाइगर मॉथ से कई गुना तेज होती है। भला वो इन छोटे छोटे तैयारों का साथ किस तरह देता। चुनाचे टिकोटा उनके ऊपर चक्कर काट काट कर उनके साथ दे रहा था। नीचे भारतीय हवाबाज यकीनन हंस रहे होंगे और इस खबर का बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे कि 8 टाइगर मॉथ रास्ते में ही तबाह हो गए। अगर वो हंसते थे तो हक का जानिब थे। उन्होंने उनकी तबाही का सामान कर रखा था, जिसका इंकशाफ रास्ते में इस तरह हुआ कि फजा में एक टाइगर मॉथ का इंजन बंद हो गया। कैडेट तैयारे को बंद इंजन से ही ग्लाइड करके उतार लाया। खुशकिस्मती से नीचे हमवार इलाका था, जंगल या पहाड़ नहीं थे। पेट्रोल डिकोटा में था, लेकिन ये जगह डिकोटा जैसे बड़े तैयारे के उतरने के लिए मौजू नहीं थी। फिर भी हवाबाजों ने खतरा मोल लिया और डिकोटा को नीचे उतार लाए। जब टाइगर मॉथ में पेट्रोल डालने लगे तो देखा कि टैंकी में पेट्रोल तो है लेकिन रुका हुआ है, क्योंकि हिंदुओं ने टैंकी में चीनी डाल दी थी। चीनी ऐसी चीज है जो पेट्रोल में हल नहीं होती और नालियों को बंद कर देती है। ग्राउंड क्रू साथ थे, उन्होंने टैंकी साफ कर दी और पेट्रोल डालकर तैयारे को उड़ाया गया। इस दौरान दूसरे टाइगर मॉथ आगे निकल गए। जरा आगे जाकर एक और टाइगर मॉथ का इंजन बंद हो गया। उसे भी बंद इंजन से महफूज उतार लिया गया। देखा तो उसकी टैंकी में रेत पड़ी हुई थी। कोशिश के बावजूद टैंकी से सारी रेत न निकाली जा सकी। बहुत सी रेत नालियों में भी चली गई थी। तैयारा बेकार था, चुनाचे उसे भारत के इलाके में फेंक दिया गया और उसका कैडेट हवाबाज डिकोटा में बैठ गया। अब 7 टाइगर मॉथ रह गए जो डिकोटा के नीचे झूमते डोलते टगमगाते उड़े जा रहे थे। राजपुताना के ऊपर का सफर कठिन और खतरनाक था। नीचे रेगिस्तान था जहां तैयारा उतर तो सकता था लेकिन वहां से उठ नहीं सकता था, क्योंकि पहिए रेत में धंस जाते हैं और तैयारा रफ्तार नहीं पकड़ सकता। वहां टाइगर मॉथों का बारी बारी पेट्रोल खत्म हुआ और उन्हें नीचे उतारा गया। डिकोटा जैसे वजनी और बड़े तैयारे को उतरने के लिए ये जगह बिल्कुल मौजू नहीं थी। चुनाचे डिकोटा को ऐसी जगह उतारा गया जो टाइगर मॉथों से बहुत दूर थी। डिकोटा के हवाबाज और कैडेट ग्राउंड क्रू कनस्तर उठाकर पैदल टाइगर मॉथों तक पहुंचे। पेट्रोल डाला और उन्हें बसत दिक्कत रेगिस्तान से उड़ाया गया।
मशरकी पंजाब के ऊपर से उड़कर आना और ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि नीचे हिंदू और सिख मुसलमानों के कत्लेआम में मसरूफ थे। वहाँ तैयारों को पेट्रोल के लिए उतारना खुदकुशी करने वाली बात थी। चुनाचे तैयारे सिंध के ऊपर से मियाँ वाली की तरफ से रिसालपुर पहुंचाए गए, लेकिन 2 टाइगर मौत रास्ते ही में फेंकने पड़े। चंद दिनों में भारत से तमाम मुसलमान हवाबाज पाकिस्तान पहुंच गए। उनकी तादाद कलील थी। उन्हीं के कंधों पर परवाज के तरबेती स्कूल का बोझ डाल दिया गया। जिस रोज ये 6 टाइगर मौत रिसालपुर पहुंचे, उसके तीसरे ही रोज रिसालपुर में परवाज की बाकायदा ट्रेनिंग की इब्तिदा कर दी गई। एयर मार्शल असगर खान, जो उस वक्त विंग कमांडर थे, उस स्कूल के पहले कमांडेंट बने और एयर कमांडोर यूसुफ, जो उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर थे, पहले चीफ इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। इतने में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान से हवाबाजी के लिए नौजवान भर्ती होने के लिए आने लगे, जिनके इंतखाब के लिए सिलेक्शन बोर्ड कायम कर दिया गया। रिसालपुर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल तरबियत के साजो सामान से महरूम था। 1948 में जब कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से पहले सरकारी दौरे पर रिसालपुर तशरीफ लाए, तो हवाबाजों की पहली जमात पास आउट होकर फ्लाइंग विंग हासिल कर चुकी थी। ये पाक फजाइया का बेमिसाल कारनामा था। कायद-ए-आज़म इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने इस स्कूल को फ्लाइंग ट्रेनिंग कॉलेज बना दिया। जब इन अव्वलीन शाहीन बच्चों को बालो पर अता हुए, तो उनके अंदाज बता रहे थे कि मुफलिसी और बेमायगी में पले हुए इन बच्चों के सीनों में ईमान का अलाव दहक रहा था। जब ये शाहीन तरबियत हासिल करके लड़ाका स्क्वाड्रनों में गए, तो वहाँ उन्हें पुरानी किस्म के वो टेम्पेस्ट तैयारे दिए गए, जिनके इंजनों की उम्र तकरीबन खत्म हो चुकी थी। लेकिन हवाबाजों ने इन्हीं तैयारों को उड़ा उड़ा कर खुद को लड़ाका हवाबाज बना लिया। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। चंद एक हवाबाज तैयार कर लेने से एयरफोर्स मुकम्मल नहीं हो सकती। एक हवाबाज को हवा में भेजने के लिए एक वसी और सिलसिला दर सिलसिला मशीनी और इंसानी निजाम दरकार होता है। ग्राउंड क्रू स्टाफ, जो फजाइया की रीढ़ की हड्डी होता है, इब्तिदा में न होने के बराबर था। पाकिस्तान में कोई तरबियती स्कूल भी न था जहां नौजवानों को भर्ती करके फनी तरबियत दी जाती। ना साजो सामान था, ना इंस्ट्रक्टर। वक्त जाया किए बगैर जो कुछ पास पल्ले था, उसी पर कोहाट, रिग रोड और कुरंगी में टेक्निकल स्कूल खोल दिए गए और बड़े बड़े शहरों में भर्ती दफ्तर खोलने के अलावा भर्ती करने वाले अफसरों ने कस्बों के दौरे कर करके नौजवानों को भर्ती कर लिया। पुराने अफसरों और नॉन कमीशन अफसरों की जरूरत दरअसल लड़ाका स्क्वाड्रनों और सर्विसिंग वर्कशॉपों में थी, लेकिन उनमें से बेशतर को ट्रेनिंग सेंटरों में इंस्ट्रक्टर बनाकर भेज दिया गया। इसके अलावा गैर मुल्की इंस्ट्रक्टरों और तरबियत के माहिरीन की खिदमत भी हासिल की गई। पाक फजाइया की तश्कील और तंजीम इंतहाई कठिन काम थी। हर मुल्क को फजाई बेड़े की जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए फजाई बेड़े की जरूरत शदीद भी थी और फौरी भी, क्योंकि भारतीय सियासतदान रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तान को खत्म कर देने के दरपे थे और उन्होंने कश्मीर की जंग आज़ादी में पूरे का पूरा फजाई बेड़ा झोंक दिया था। कश्मीर के बहाने इंडियन एयरफोर्स के तैयारे गुजरात के सरहदी देहात पर अक्सर बमबारी, रॉकेट या गन फायरिंग कर जाते थे। हद ये कि एक बार उन्होंने मरी पर भी बमबारी की। इंडियन एयरफोर्स से अपनी सरहदों को महफूज करने के लिए पाकिस्तान को कारगर फजाई बेड़े की शदीद जरूरत थी। भारत को तो तैयार फजाई बेड़ा मिल गया था और उसके पास ग्राउंड क्रू स्टाफ के लिए और हवाबाजों की तरबियत के लिए भी स्कूल और सेंटर मौजूद थे। पाकिस्तान के बन जाने से उनके रोजमर्रा के मामूल में कोई फर्क नहीं आया था, सिवाय उसके कि मुसलमान हवाबाज और ग्राउंड क्रू उधर से इधर आ गए थे। इंडियन एयरफोर्स के पास टेम्पेस्ट के अलावा हरिकेन और स्पिटफायर लड़ाका तैयारे भी थे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के हिस्से का साजो सामान भी हड़प कर लिया था। उसके बरक्स पाकिस्तान को अपनी फजाइया की नई बुनियादें रखनी पड़ी थी। आज बहुत कम लोगों को इल्म है कि पाक फजाइया के कारिंदों ने अपनी फजाइया का ढांचा कबाड़ खाने से तैयार किया था। वतन के उन अव्वलीन आशिकों के पास सिवाय जज्बा हुब्बुल वतनी के और कुछ न था। वो वक्त वो कभी नहीं भूल सकते जब अक्सर सेल्वेज डंप में स्पेयर पार्ट्स ढूंढते रहते थे और ये जुमला उनका नारा बन गया था कि कहीं नट या बोल्ट पड़ा मिल जाए तो उठाकर स्टोर रूम में जमा करवा दो। उसी दौर की एक बात याद आती है कि पाक फजाइया का एक विंग कमांडर घूमता फिरता मेरे स्क्वाड्रन की तरफ आ निकला। उसने मुझे बुलाया और एक तरफ इशारा करके कहा, वो देखो, जाओ उठा लो, बड़े काम की चीज है। मैं भागा गया और वो चीज उठा लाया। वो क्या था? तैयारे की मशीन गन की नाली साफ करने वाले कपड़े का सिर्फ 2 इंच टुकड़ा। ये खास किस्म का कपड़ा होता है जिसे हम अपनी जबान में 4x2 कहा करते थे, यानी 4 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़ा। उस दौर में वो वाकई बड़े काम की चीज थी, वरना मुझे याद है कि जब हम रॉयल इंडियन एयरफोर्स में अंग्रेजों के साथ होते थे तो ऐसे कपड़े गजों के हिसाब से बिला वजह इस्तेमाल करके जाया कर दिया करते थे।
ایک بار پتہ چلا کہ چکلالہ کے ہوائی اڈے میں طیاروں کے کچھ اسپیئر پارٹس اور بعض حصے بیکار پڑے ہیں۔ 2-3 گراؤنڈ کرو اپنے خرچ پر چکلالہ گئے اور کئی کام کی چیزیں ہوائی اڈے کے کباڑ خانے سے اٹھا لائے۔ ایسی مثالیں بہت کم ہیں کہ گراؤنڈ کرو نے بیکار طیاروں کو سیلوج سے اٹھا کر اڑنے کے قابل بنا دیا ہے۔ یہی جذبہ تھا جس نے پاک فضائیہ کی بنیادوں کو تقویت دی، اور تھوڑے ہی عرصے میں پاکستان ایئر فورس اس قابل ہو گئی کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ شمال مغربی سرحد کے قبائلی علاقے میں بھارت نے جو مسلح بد امنی اور جنگی پیمانے پر شرنگیزی کے مظاہرے کیے تھے، انہیں پاک فضائیہ کے چند ایک طیاروں نے وہیں ختم کر دیا۔ وہاں پاک فوج کی ایک بھی چوکی نہیں تھی، کیونکہ قائد اعظم کے حکم کے مطابق قبائلی علاقے سے تمام فوجوں کو واپس بلا لیا گیا تھا، اور رزمک، وانا اور ڈومیل جیسی چوکیاں قبائلیوں کے حوالے کر دی گئی تھی۔